आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। फास्टफूड इंडियाला आहे. येऊ 저거 소리. जी जी हाँ ये İsmail Edip tarihi var bu. Gene mi çıktı? Stop. 23 members. और सर अच्छा रहा सर. ठीक है सर. वेलकम सर. अस्सलाम वालेकुम. Seminar has just put it to the brought up in Kashmir. Married also in Kashmir. What about you? Recently you have joined. Come back here. Nice meeting you, ma'am. Nice meeting you. Welcome to this place. So beautiful. तात representatives from WHO to cover this. Let's talk again knee replacement camp. Here we have Mr. Moses Chaudhary. We have special guests like Dr. Subohi Khan and also Dr. Badr Azam's daughter Jazar Khan. She is also a radiologist, renowned radiologist working in Dubai. And medical officers, dental surgeons, paramedical staff and volunteers of Al-Isra Healthcare Research Foundation Kargil, and also media people. I, on behalf of Al-Isra, the sessions of the
this camp, we have OPD session today, especially more focusing on the knee patients only by Dr. Azam Badr Khan and his team. And also for 3 days camp, we have almost more than 20 patients of knee osteoarthritis knee patients are listed for total knee replacement. Azam Badr Khan has been worldwide, not in Africa, in Asia, other countries also. So Dr. Azam Badr Khan is no need of introduction. He is a globally respected orthopedic surgeon in Dubai, UAE. He is very passionate about making advanced knee care accessible to all. Founder of the Let's Walk Again initiative. So he prefers and offers free knee surgeries worldwide, either in Africa, Asia, or other countries, bringing hope and mobility to underserved communities with over 20 years of experience in this field, and also trained from USA and Russia. He has 20 years of experience and specialized training in USA and Russia. Dr. Azam Badr Khan is skilled in cutting-edge techniques like robotic and customized knee replacement surgeries. So Dr. Azam Badr Khan and his team is associated with Al-Liza Healthcare Research Foundation Kargil for the last 6 to 7 years. As far as I know that we started a knee campaigning in 2018 or 2019 before COVID, and thereafter we are continuing to do this knee replacement camp surgeries, OPD surgical procedures for knee surgeries here at the District Hospital Kargil, especially targeting the underprivileged and economically weak sections of the society. So this camp, especially as a president, I have the experience that these camps are very difficult to manage at the peripheral tertiary hospital like District Hospital that we have, because these knee surgeries are very advanced, very complicated surgeries, because these patients are mostly elderly patients, more than 50 years of age, with comorbid conditions, hypertension, diabetic, COPD, and other comorbid conditions. To operate here at District Hospital Kargil, and I definitely, as a president, I would like to salute the team of our orthopedic surgeons here at District Hospital Kargil. At the same time, our anesthetist team, especially leading anesthetists, we have Dr. Asim Hussain, Dr. Abbas Ali, Dr. Shazia, and other anesthetists. And we have orthopedicians like Dr. Ahmad Ali. He has been doing work in he's given his life dedicated to District Kargil's common people, and he's working here for the last more than 20 years, and he's working with this total knee replacement camp for the last 10 to 15 years. He is the most experienced orthopedic surgeon we have. And also we have Dr. Azhar, orthopedic surgeon. We have Dr. Shujar. He is a member of Al-Liza Healthcare Research Foundation Kargil. He has the experience of working with Dr. Azam Badr Khan for the last 5 to 7 years. And just I would like to highlight the initiative of Let's Walk Again, taking this initiative to worldwide level, at WHO level. Today we have, it's very privileged to announce that we have a WHO representative here at District Hospital Kargil, and definitely it is an opportunity for us, especially Al-Liza Healthcare Research Foundation Kargil, to get highlight at an international level like WHO. He will be covering this camp, Let's Walk Again, and also knee replacement camp. रहने वाले हैं सर, मैं अपनी तरफ से पूरी करगिल के कौम की तरफ से रियली दिल की गहराइयों से आपका थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि आप बिना किसी गरज के यहाँ के लोगों को नई जिंदगी देने के लिए आते हैं। और दुबई से यहाँ आना सर इस नॉट जो वहाँ से यहाँ पे आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अब इसे लगता है कि आपको यहाँ के लोगों के साथ एक मोहब्बत है, एक अपनापन है, जिसकी वजह से आप यहाँ से वहाँ दुबई से यहाँ आप चल के आते हैं। तो इंशाल्लाह सर इस चीज़ को करगिल वाले भूलेंगे भी नहीं, भूलना भी नहीं चाहिए।
और हम इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है, जब तक हयात है हम, तब इंशाल्लाह तब तो सर आपकी चीज़, आपका ये जो मोहब्बत है और जो अपनापन है सर, हम हमेशा सर आंखों पे सलाम करके रखेंगे और भूलेंगे भी नहीं, भूलना भी नहीं चाहिए। और जिन लोगों को आप जिंदगी देते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। और हम सब समझ सकते हैं, आप एक बार बेड रेडी हो जाए तो कितना मुश्किल है, और एक बार जब डिपेंडेंट हो जाता है किसी पे, फिर हम समझ सकते हैं कितना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हैव ए नाइस डे। एक बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत सलामत रखे। अच्छा सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। We have a young and dynamic administrator in the form of Mr. Shri Rakesh Kumar sir, our Deputy Commissioner in CEO District Kargil. So, sir is very cooperative and also very much helping in conducting such camps. Always encourage us also to conduct such specialty in other camps. So definitely would like to thank our district deputy of this commissioner, Shri Rakesh sir. Please continue support in your tenure, because we have seen that for the last 1 year sir has been here as posted as a deputy commissioner, and he is always helping for the medical people, also other kinds of medical camps. So very much thankful on behalf of Al-Rizza. I definitely would like to once more thank you, sir. And without wasting time, I would like to call upon today's guest from Dubai, Dr. Azam Badar Khan, to share his experience on working in Dubai, a metropolitan city. Everybody knows that it's 50 years more far than developed as compared to here. So experience. His experience working in Dubai and also at a peripheral hospital like here at District Hospital. Thank you, sir. सलाम, नमस्कार। ये एंड आज हमारे साथ मेरी खुशकिस्मती है कि राकेश जी हमारे साथ हैं, जो आपके यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं। मेरे लिए यहाँ पे आना, कारगिल और लद्दाख का, शायद आप सभी लोगों को पता है कि पिछले फर्स्ट टाइम मैं इस सरजमीन पे कदम रखा था 92 में, जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था। और उस ज़माने में लद्दाख के बारे में मेरे जहन में बहुत ज़्यादा ख्यालात थे, और वो उस समय मुझे मौका मिला था कि मैं लेह में आ सकूं, और चोगलम सर में जो ITBP का आपका कैंप है वहाँ पे मैं रुका था। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि फिर वहाँ से वापस मैं ट्रक से मनाली गया, और उसके बाद से वो बाइकिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, जब मैं हमेशा दिल्ली से, हमारा एक बाइकिंग मोटर बाइकिंग ग्रुप है पाथफाइंडर्स ऑफ इंडिया, हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और दिल्ली से हम लोग वाया जम्मू, श्रीनगर, लेह, उस ज़माने में कारगिल हमेशा मैं क्रॉस करता था। और एक इंसिडेंट शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, सर को भी मैं बताना चाहूँगा कि पहली बार कारगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आई केम एज अ पेशेंट ऑफ माय फ्रेंड। क्या हुआ था कि द्रास के पास एक ब्लैक टॉप पे हमारी बाइक स्किड कर गई एक, और जो मेरा मेंटोर थे और मैं पीछे बैठा था, मडगार्ड में उनका पैर अटक गया और फ्रैक्चर हो गया। वहाँ से हम उनको लेकर के यहाँ कारगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए थे, जहाँ पे फर्स्ट एड दिया गया था, जो आपका पुराना है वहाँ पे। और वहाँ से फिर हम लोगों को बाई उनको एम्बुलेंस से ले गए, और हम लोग बाइक से वापस जाके एंड देन वी फ्लू आउट बिकॉज वी हैड टू अबैंडन दैट ट्रिप। मेरा एक्सपीरियंस कारगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का वो नज़ारा अभी भी मेरे जहन में रहता है, और मुझे खुशी होती है कि जब मैं इसी जगह पे, मैंने कभी उस समय ये ख्याल में भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा यहाँ पे आकर के कुछ करने का, बिकॉज मैं जब भी हर साल बाइक पे हम लोग आते थे, सियाचिन ग्लेशियर, जो आपको चुशूल, सारे मतलब आप समझ लीजिए कि लद्दाख रीजन के सारे जगह पे मेरा जाना हुआ है बाइक पे। तुर्क जो नदर मोस्ट विलेज है वहाँ तक। तो ये मेरे ख्याल से
हमारे इलियास साहब हैं, जो कि मैं बार बार इनको, और इनायत साहब हैं जिनकी वजह से मुझे मौका मिला है यहाँ पे। ये भी सर एक छोटा सा इंटरेस्टिंग है कि जैसे मैंने आपको कह रहा था कि मैं हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं कुछ करूँ यहाँ पे सोसाइटी में वापस करूँ। टू स्टार्ट विद आई जस्ट थॉट दैट आई विल डिस्ट्रीब्यूट अ सोलर लैम्प। तो किस जगह पे करें? तो इनका जो गांव है हुंडरमन, इलियास साहब जो हमारे साथ सामने खड़े हुए, what do you call it? हुंडरमन ब्रोक, 10 किलोमीटर है यहाँ से। वहाँ पे लोग, मुझे बताया गया कि वहाँ पे एक 30-35 घर का एक हैमलेट है जो कि बिल्कुल पहाड़ के स्लोप पे है, और 71 तक वो पाकिस्तान में था, उसके बाद फिर हमारे पास आया है। तो शायद वहाँ पे किसी भी लोगों के पास कोई नौकरी नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग एज अ पोर्टर फॉर द आर्मी पोस्ट फॉर द टॉप। तो मेरी ख्वाहिश फिर हुई कि मैं वहीं पे सोलर लैम्प बांटता हूँ। उस दौरान में जब मैं वहाँ पे बांट रहा था हर घर में जा कर के, तो एक घर में इनके वहाँ के जो मौलाना या जो भी हीलर है, उनके यहाँ मैंने एक पर्सन सिटिंग विद हिज लेग स्ट्रेटेड नेक, and I could make it out that he's having a knee problem. I was told that he has a knee problem, and there are so many people like this in our region who are not getting any benefit. And at the same time, they also said Ladakh is privileged because from the AIMS medical team is coming and doing a knee camp where they are doing the knee replacement or knee treatment. But here, nobody is coming. Trust me, more than them, within 3 months, I was back here to do a knee camp. और इन्होंने, इन लोगों ने मुझे मिलवाया डॉक्टर अब्बास और अलविजा से, और उसके बाद इनसे ज़्यादा मैं वहाँ से दुबई से मैसेजेस, फोन्स की कब क्या है, कब कर रहे हैं आप लोग, तो ये भी तो इनको भी लग रहा होगा कि ये कौन दुबई का डॉक्टर एक है जो हमारे छोटे से, बिकॉज सी इट्स वेरी प्रैक्टिकल दैट दे वुड हैव थॉट कि दुबई अमेरिका से लोग आते हैं, घूमने आए, टूरिस्ट आए और घूम करके चले गए, हु केयर्स फॉर इट कि यहाँ पे आकर के हम सर्व करें। तो उनको माइंडसेट ये था कि ही जस्ट इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट इट, पता नहीं ही विल। जब मेरा पर इंसिस्टेंट रहा तो फिर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, एंड हम लोगों ने काफी अच्छा 2 दिन में 2 days we saw 900 knee patients. 900 knee patients. I still remember that. That was a huge achievement, and I could not. ये मेरे लिए भी ये बिलीव करना कि हम लोगों ने अकेले इतने सारे पेशेंट्स को मैंने देखा, एंड दैट वाज अनदर स्टोरी बिहाइंड दैट। शायद आप लोगों को याद होगा कि अलिजा को, इन लोगों ने मुझे एज अ VIP डॉक्टर फर्स्ट रो पे बैठा करके रिबन काट करके सब कुछ बैठाया, और पेशेंट नीचे इन्होंने, वो कौन सा ग्राउंड था जहाँ पे हम लोग, और वहाँ पे नीचे पे सारे पेशेंट 400, इन्होंने कहा था कि 400 का हमारा रजिस्ट्रेशन है, और नीचे भी पेशेंट बैठे हुए। कैन यू इमेजिन अ नी पेशेंट हु इज नॉट एबल टू वॉक, दे हैड टू क्लाइंब द स्टेयर्स एंड कम टू माय चैम्बर टू सी अ डॉक्टर। आधे घंटे के बाद मैंने कहा कि सर ये तो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, वो नीचे पब्लिक पूरी बैठी हुई है, पेशेंट बैठे हुए हैं, इस तरह से तो आप हमको VIP, अगर VIP बना के रखना है तो फिर तो हो गया, आप VIP बना लो, बाकी को सब घर भेजो, मतलब ये मैक्सिमम 40-50 पेशेंट्स हम ज़्यादा नहीं देख पाएंगे दिन में। आई सेड कि आई विल गो डाउन एंड सिट देयर। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड रेजिस्टिंग कि पॉसिबल ही नहीं, वो सारे आपको झुंड में कर लेंगे। देन आई टोल्ड डू वन थिंग, get me a revolving chair, get me a doctor, make them sit in row of 50 to 70, make 6-7 rows। सारे पेशेंट को उन लोगों ने, फिर हम लोगों ने वैसे बैठाया, और मैं रिवॉल्विंग चेयर पे हर पेशेंट पे मूव करता रहा, और whatever instruction I gave to our colleague, हम लोगों ने शायद स्क्रीन किया था अराउंड 100 knee replacement patients, 100, उसमें 900 में से 100 जिनको एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले, जिनको बिल्कुल घुटने चेंज करने की जरूरत थी, बाकी तो सभी के सब अर्ली और मॉडरेट वाले तो थे ही। The other interesting part was, which I never forget, is कि बाइक रहेंगे 50, 60, 70 साल, तो वो इज नॉट करेक्ट, उस पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथिंग की जरूरत है,
ये कॉन्सेप्ट लाना शायद मेरे ख्याल से इज वेरी वाइटल. सो लेट्स सी ऊपर वाले कहाँ तक मुझे कामयाब करते हैं इसमें, एंड इस कैंप में रहेगा. एंड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी हियर, स्टार्टिंग फ्रॉम अल रिजा, शायद हमारे साथ है उनकी भी, और सारे लोगों को जो अल रिजा से और हमारे यहाँ की जो CMO एंड एवरीबडी, especially to you, sir. And I'll try to meet you and I'm trying to have a walkathon this year itself. तो उसमें शायद कामयाबी मिले इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए. ठीक है, थैंक यू. Continuing to inspire us in doing social work. So without wasting time, I would like to request today's chief guest, Working Deputy Commissioner CEO Legislative Kargil, Shri Rakesh Kumar sir, to come and rise and share your present thoughts. स्पेशल गेस्ट डॉक्टर खान साहब, उनकी पूरी फैमिली, मौलाना साहब, CMO साहब, DTO मैडम, अल रजा के जितने भी यहाँ पे ऑफिशियल्स, वॉलेंटियर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, वॉलेंटियर्स जितने भी यहाँ प्रेजेंट हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, जुली नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी मैं डॉक्टर खान साहब से बात कर रहा था. पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका और आपकी फैमिली का कि दुबई से यहाँ आना, और वो भी एक फ्री कैंप करने के लिए, उसके लिए गट्स चाहिए, जबकि आप खुद एक दुबई में एक बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पे जाने जाते हैं, जहाँ पे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. जस्ट एक ही आपको लद्दाख एरिया के साथ, इन्होंने मुझसे भी जस्ट बात की 1992 में फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया कि मैं लद्दाख में आया था, करगिल में फर्स्ट टाइम 1992. मैं जस्ट बता रहा था कि 1992 में कदा भी नहीं हुआ था उस टाइम. आप लद्दाख विजिट कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो माइंडसेट वैसा कि गिव इट बैक टू सोसाइटी, वापस देना. तो इन्होंने मुझे बताया कि जस्ट हम बाइकर्स का एक ग्रुप बन के आते थे, और बहुत बार हमने लद्दाख आए और यहाँ के नेचर, आबो हवा का मतलब एक बहुत भरपूर आनंद लिया है. तो बोला कि वहाँ से एक माइंडसेट बना कि कुछ सोसाइटी के लिए वापस करना है, लद्दाख की सोसाइटी के लिए, करगिल की सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करना है कि एटलीस्ट यहाँ के लोगों की कुछ हेल्प कर सकें. और उसके बाद कंटिन्यूस मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे कैंप्स किए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं. और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को ये लगी, जब मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, इन्होंने ये कहा कि सर मैं कैंप तो बहुत टाइम से करवा रहा हूँ, और हमारे डॉक्टर्स भी सारे पार्टिसिपेट करते हैं, और बहुत अच्छे स्किल सेट के साथ, बहुत अच्छी ट्रेनिंग के साथ डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, और बहुत अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ हैं. बट एक चीज़ मेरे को ये देखने को मिली कि इंस्पायर्ड कंटिन्यूसली हमारे साथ मेडिकल कैंप करते करते हमारे डॉक्टर्स को भी ट्रेन होना चाहिए कि वो यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट कर सकें. तो मेरी रिक्वेस्ट है CMO साहब से, उनके पूरे स्टाफ से, आप चीज़ों को सीखें, सर से टेली पे कनेक्ट हो जाएं अगर आपको कहीं इश्यूज आ रहे हैं. बट स्लोली हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी इस तरह डेवलप करें कि यहाँ पे जो नी रिप्लेसमेंट का हमें बैकलॉग, और या फिर हमें बाहर से, डॉक्टर साहब यही बोले थे कि हमें किसी मोमेंट पे तो हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा. यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं. डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मैं खुद हेल्प करूँगा आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में हमें बैकलॉग ना हो नी रिप्लेसमेंट का, या कि कोई भी हमारा पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के लिए वेट ना करे कि हमें वेट करना है, बाहर से कभी कोई कैंप लगेगा देन हम हेल्प करेंगे. Sharing your thoughts and for the appreciation and encouraging our organization at the same time. So Dr. Nee, his dream is to for a walkathon, to organize a walkathon in Kargil. So definitely we are looking forward to get as the what the Deputy Commissioner is already given a thumbs up. So definitely we will looking forward in future the endure as a walkathon in future in Kargil. So thank you, sir. And I just would like to conclude the occasion because of the shortage of time, and also patients are waiting to get operated, and also patients are waiting their OPD. So I would like to, on behalf of thanks
all the chief guests and all the guests who attended and for sparing their valuable time to attend this and making this event a successful one. And I'd like to thank all the organizers and volunteers, doctors who are associated with the Al-Riza Health and Research Foundation Kargil to make this event a successful one. I would like to conclude this occasion with the word of thanks from our member of Jamiat Ulama Islamiyya Kargil, Sheikh Ali Musa. Please come on guys, share some. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस प्रोग्राम का एक मकसद है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज जो डॉक्टर साहब आए हैं हमारे मेहमान खुसूसी के तौर पर जो इन्होंने इतने दूर सफ़र करके यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। सबसे पहले उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और खरीद और तमाम जितने भी हमारे डॉक्टर साहबान के तशरीफ रखते हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ये इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये घुटने का दर्द जो है इंसान की हयात की एक सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से जो हमें मिला है। इंसान इसी घुटने की वजह से हर जगह जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हरकत करते हैं, दौड़ते हैं, जितने भी सारे काम होते हैं इंसान के घुटने की वजह से रहते हैं। जब तक इंसान का घुटना काम करें तब तक इंसान की हयात हर जिंदगी के पहलू में बहुत अच्छी तरह से चलने लगते हैं। जब इंसान के घुटना बैठने लगते हैं तो इंसान को बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंसान के हाथ से जाते हैं जो दूसरों के सहारे के बलबूते पर ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कुरान में अल्लाह ने बहुत सारे जगहों पर इंसान की हर नेमत के बारे में बताया है। उसमें से एक नेमत यह है कि खुदावंद मुताल फरमाते हैं तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। जब इंसान को बनाया तो अल्लाह ने अपने आप को मुबारकबादी दी क्योंकि ये इंसान है जो अल्लाह को लोगों तक पहुंचाने में अल्लाह की नेमत और हर चीज़ें जो इंसान के अंदर जो ताकत दी है खुदा ने वो किसी इंसान के अंदर नहीं। ये तबाबत भी एक बहुत बड़ी नेमत है हर किसी को, जिस किसी को नसीब हो, क्योंकि इसमें आप एक इंसान की हयात, एक इंसान को एक नई ज़िंदगी, एक इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका दूसरों की निस्बत अपने आप को मैं कितना आज तक नीचे था और मैं आज कहाँ पहुँचा हूँ, ये इंसान को तबाबत ही बताते हैं कि आपके अंदर जो चल रहा है वो सब आपकी असली हयात। हमारे इस्लामिक सोसाइटीज़ के अंदर भी हर वो चीज़ें हैं जो हम शायद बहुत दूर हैं। इंसान की जिस्म के अंदर जितने भी इंसान की ज़िंदगी में काम आते हैं जैसे हाथ, पैर, आँख, घुटना, जो भी हो, इंसान के बॉडी के अंदर जो सेल्स रहते हैं वो डॉक्टर साहब बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये इंसान की ज़िंदगी के पहलू को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल निभाते हुए ये सेल्स जो उसकी हर चीज़ को सही तरीके से मेंटेन करते रहते बॉडी के अंदर। तो इस चीज़ को हमें जितने भी हम करगिल की आज पूरे पब्लिक की तरफ से और जितने भी बीमार आज यहाँ पे इलाज के लिए आए हुए हैं सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप वहाँ से इतने दूर से आए हैं। जो हमारे अल-रिज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन करगिल की तरफ से ये कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हमारे जितने भी अल-रिज़ा हेल्थ केयर के जितने भी मेंबर्स हैं हम सब की तरफ से आज हमारे सदर साहब और नए सदर साहब भी यहाँ पे ना होने की वजह से आज मैं यहाँ आप लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने दूर से यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और इंशाअल्लाह आपकी इस तबाबत का जो आपकी माहिरियत आप रखते हैं इस चीज़ में हमारे पूरी पब्लिक इसका इंशाअल्लाह आपसे इस्तेफादा करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फिर से यहाँ दूर से आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जो यहाँ पे एक नी हेल्थ कैंप हो रहा है सर, यहाँ से 12 years of the government गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसे हेल्थ कैंप जैसे आज नी रिप्लेसमेंट का एक कैंप हो रहा है, 3 दिन का जो कैंप है, डॉक्टर खान साहब इसको लीड कर रहे हैं जो खुद ऑल द वे फ्रॉम दुबई से यहाँ आए हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। ऐसे रेगुलर कैंप्स होने की वजह से जो
यहाँ पे जो हमारे हेल्थ के जो जितने भी जैसे नी रिप्लेसमेंट में जितने बैकलॉग्स वगैरह थे वो टाइम टू टाइम क्लियर भी होते जाते हैं और लोगों को और डोर स्टेप पे उनकी हेल्प मिलती जाती है। तो ये रेगुलर कैंप जैसे आई कैटरेक्ट से रिलेटेड, ये नी से रिलेटेड, ये रेगुलर कैंप है अलरजा और बाकी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कंडक्ट किए भी जाते हैं। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि रेगुलरली वो लोगों की हेल्थ से रिलेटेड उनका जो इंटरेस्ट है और जिस तरह वो इंटरेस्ट लेके काम करते हैं बड़ा ही अच्छा है। सर अभी गवर्नमेंट का 12 इयर्स कंप्लीट हो गए सर, तो फर्दर हेल्थ फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने के लिए खासकर यहाँ पे जो डॉक्टर्स की कमी है और जो आप सोम जैसे यूटी बना था, यूटी बनाने के बाद आप देख रहे हो जैसे हमारा काम हॉस्पिटल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा हॉस्पिटल डेवलप हुआ, उसका अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कंटिन्यूसली चल रहा है, डे बाय डे ग्रोथ हो रही है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी की ग्रोथ भी देखो आप कंटिन्यूसली हो रही है, आप रेगुलर रिक्रूटमेंट भी डॉक्टर्स के हो रहे हैं, तो उससे डे बाय डे जितनी भी इश्यूज हैं हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड, ये सारी हमें यहाँ पे करगिल में डे बाय डे मुहैया हो जाएंगी। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ एक्सेप्ट सुपर स्पेशलाइजेशन और कुछ स्पेशलाइजेशन के अलावा सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल भी हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने उनके मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह वो भी अवेलेबल हैं। और विद आने वाले टाइम में जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन और यहाँ पे इनकॉर्पोरेट विद नई बिल्डिंग बनने के बाद इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे, हम बेटर हेल्थ फैसिलिटी करगिल के लोगों को मुहैया करा देंगे। रेडियोपैथी क्या लेफ्ट साइड में degenerative spine and the pain is originating from back. Now after this spine और घुटने में भी पेन है, घुटना में इसके लिए सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ दे देंगे? Sir, I have to glycerin for hernia, spaghetti or for spine. But otherwise, only again exercise, again precaution. If it is more irritation, this उससे और प्रीगा वाले नहीं रहा नहीं के लिए बहुत वक्त फिर कोलाजन Actually, I started from glycerin, sir. Now I switched on this collagen peptide. And collagen is associated collagen feature. Actually, sir, the pain is continuing from this spine. spine It is main more of pain the हुआ spine. है So the main नहीं keeping that in mind she's already started with the early osteoarthritis so we have to take care of the because I'm wait and looking at Ranga नहीं है okay सर टाइम इज राइट मेडिसिन अपने हाथों से लिखो सर हड्डी
पूरा लिस्ट जितना गैप यहाँ पे है उतना ही गैप स्क्रैच कर रहा है। इसका मतलब है कि अंदर का गुद्दा बिल्कुल खत्म हो गया। इसमें दवा, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन, इन चीज़ों का कोई असर नहीं होगा या कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं डिफॉर्मिटी भी है, फ्रैक्चर भी है, वायरस है, and both the bones are touching on each other. So the only treatment is, because there is no gap left, we have to do a knee replacement. Semua kambur fungsi bergoyang, itu yang manita, soeka, menurut saya punya muskil, untuk punya ninja, dari yang semua mayung kata mayung narikna, ठीक है, ये तो थोड़ा दूर लंकी गई, यहाँ तकलीफ यूं करते हो मेरी ना उसको प्रोजेक्ट कर दी लंकी गई, चलो धीरे वो yang iris mancika, yang kacula, yang agak fungsi manika, soeka, यूं नोरे चलते हैं, यूं मुश्किल है, यहाँ मशरा यूं करते हो narikna, फुल साइना